हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का अपना टॉपिक है इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। एलपीजी रिफॉर्म्स भी इनको कॉमनली जाना जाता है। एलपीजी मींस लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये जो तीनों टर्म्स हैं ये अपन आगे इनको पढ़ेंगे, एक एक अलग अलग पढ़ेंगे कि लिबरलाइजेशन क्या होता है, इसका इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ा। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, इसका इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ा था, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। और ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, इसका इंडियन इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ा था, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। और इसके आने के बाद क्या क्या चेंजेस आए हैं, इन दोनों के आने के बाद इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या चेंजेस को देखने को मिला। करंट टाइम में भी क्या क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं और करंट सिनेरियो में भी ये क्या क्या इम्पैक्ट डाल रहे हैं हमारी इंडियन इकोनॉमी पे। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। इसका पहला पार्ट इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो चलिए, इंट्रोडक्शन में अपना पहला पॉइंट है, इन 1991 इंडिया मीट विद एन इकोनॉमिक क्राइसिस रिलेटिंग टू इट्स एक्सटर्नल डेब्ट। Government was not able to make repayment on its borrowing from abroad. Foreign exchange reserve. Second point is, it is generally maintained to import petroleum and other vital items dropped to level that were not sufficient for even a fortnight. The crisis was further compounded by rising the prices of essential goods. All these leads the government to introduce a new set of policies measures which change the direction of our development strategies. अब इससे ये अपना इंट्रोडक्शन का पार्ट हो गया। इसमें इतना इंट्रोडक्शन है, इससे ज़्यादा इंट्रोडक्शन में आप अगर एग्जाम में आता भी है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, और अगर कोई बड़ा क्वेश्चन आता है 6 नंबर के हिसाब से, तो आप इंट्रोडक्शन इतना देकर भी आप अपने क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड जो सेगमेंट है वो है अपना बैकग्राउंड का। तो चलिए बैकग्राउंड शुरू करते हैं। बैकग्राउंड में हमारा जो पहला पॉइंट है, 1 मिनट में पेन ले लेता हूँ यहाँ से। तो ये हो गया अपना बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड जो पहला है, द ओरिजिन ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम द inefficient management of the Indian economy in the 1980s. For implementing various policies and its general administration, the government generates funds from various sources like tax, running of public sector. The government continued spending on development programs of the government did not generate additional revenue. In late 1980s, the government expenditure began to exceed its revenue by such large margin that meeting the expenditure through borrowings became unsustainable. India approached the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), popularly known as World Bank, and the International Monetary Fund (IMF) received $7 billion as loan manage the crisis. For availing the loan, these international agencies accepted India to liberalize and open up the economy by remove restriction on the private sector, reduce the role of government in many areas, and remove trade restriction between India and other countries. India agreed to those conditions of the World Bank and IMF and announced the new economic IMF and India announced the new economic policy. The set of policies can be classified into two groups. First is stabilization measures and second is structural reforms measures. First is stabilization measures. These measures are short term, intended to correct some of the weaknesses that have developed in the balance of payment and bring inflation under control. Second is structural reforms measures. These measures are long term, aimed at improving the efficiency of the economy and increase its international competitiveness by removing the rigidities in the various segments of the Indian economy. लिबरलाइजेशन। अब शुरू होता है अपना मेन टॉपिक, जिसके लिए हमें अब पढ़ रहे हैं ये। सो इसमें पहला पॉइंट आता है लिबरलाइजेशन। 3 पॉइंट: लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन।
तो उसमें से पहला जो पॉइंट था वो था लिबरलाइजेशन। तो क्या होता है लिबरलाइजेशन? लिबरलाइजेशन इज द प्रोसेस और मीन्स ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ कंट्रोल ऑफ द स्टेट ओवर इकोनॉमी एक्टिविटी। It provides a greater autonomy to the business enterprises in decision making and eliminates government interference। देखिए लिबरलाइजेशन का बेसिकली मतलब होता है कि गवर्नमेंट का जो बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज़ है, जो उनका इंटरवेंशन है, उसको काफ़ी लिमिटेड कर देना या फिर यूँ कहूँ कि बहुत ही कम कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोनॉमी बिजनेसेस और एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में उनको ऑटोनॉमी देना, और गवर्नमेंट्स का जो इंटरफेरेंस है उसको एकदम से यूँ मान लीजिए नेग्लिजिबल कर देना, ना के बराबर कर देना ही लिबरलाइजेशन है, जिसमें गवर्नमेंट का कोई इतना वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होता है। प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर अपने अपने हिसाब से बिजनेस एक्टिविटीज़ करते हैं। नेक्स्ट सब पॉइंट इज, इसी में इसका सब पॉइंट है, सेक्टर विच रिसीव्ड मोर अटेंशन इन एंड आफ्टर 1991। तो हमारी जो रिफॉर्म्स पॉलिसीज आई थी 1991 आफ्टर इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद, उसके बाद कौन कौन से सेक्टर्स से जिनको काफ़ी ज़्यादा अटेंशन दी गई थी? तो इसमें पहला है इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया आपका, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया ये, और आपका फॉरेन ट्रेड हो गया, ये अपन इससे पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। अभी वो था, वो जो पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था वो अपन ने पढ़ा था कि 1947 इंडिपेंडेंस के बाद से और 1990 तक का जो पीरियड था उसके बारे में अपन ने पढ़ा था, जिसमें 5 ईयर प्लान्स भी इंक्लूड थे, उसके क्या क्या इम्पैक्ट रहे थे वो भी थे। अब ये है 1991 के बाद, जो रिफॉर्म्स के बाद इनकी क्या क्या सिचुएशन रही थी, अब उसके बारे में पढ़ रहे हैं। सो इसमें पहला है इंडस्ट्रियल सेक्टर, जिसके ऊपर काफ़ी ध्यान दिया गया था रिफॉर्म्स के बाद। तो ये रिफॉर्म्स के पहले इसके क्या क्या कंडीशन थी, क्या क्या इसमें सिचुएशन थी, किस गवर्नमेंट का कितना क्या रोल था इसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर में। तो रिफॉर्म्स पॉलिसीज आने से पहले अपन इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें पहला पॉइंट है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, अंडर विच एवरी एंटरप्रेन्योर had to get permission from government officials to start a farm, close a farm, or decided the amount of goods that could be produced। मतलब सारे काम जो भी करने सरकार से पूछ के करो, आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। सेकंड इज प्राइवेट सेक्टर वाज नॉट अलाउड इन मैनी इंडस्ट्रीज। प्राइवेट सेक्टर थे वो बहुत से इंडस्ट्री में अलाउड नहीं थे। और थर्ड इज सम गुड्स कुड बी प्रोड्यूस्ड ओनली इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। कुछ गुड्स ऐसे भी थे जो सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी वही प्रोड्यूस कर सकती थी। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर वाली या फिर पब्लिक की क्यों ना हो, उनको अलाउ नहीं था कि वो गुड्स भी प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी करती हों, क्योंकि गवर्नमेंट उस टाइम पे नहीं चाहती थी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए कोई ज़्यादा कंपटीशन मार्केट में आए। वो ये चाहती थी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी सस्टेन करती रहे मार्केट में। फोर्थ पॉइंट इज कंट्रोल ऑन प्राइस फिक्सेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलेक्टेड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। अब ये जो अपन ने पढ़ा था, ये सभी पॉइंट्स जो हैं ये है रिफॉर्म्स 1991 के रिफॉर्म्स के आने से पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर में। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या क्या चेंजेस आते हैं 1991 के बाद, वो अपन अब आगे पढ़ेंगे। तो ये है आफ्टर इंट्रोड्यूस्ड एलपीजी रिफॉर्म्स पॉलिसीज। इसमें पहला पॉइंट है द रिफॉर्म्स पॉलिसीज इंट्रोड्यूस्ड इन एंड आफ्टर 1991 रिमूव्ड मैनी ऑफ दीज रिस्ट्रिक्शन। ऊपर जो अपने ये रिस्ट्रिक्शन जो अभी पढ़ी है, इसको काफ़ी रिस्ट्रिक्शन को है जो है वो हटा दिया गया था। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वाज अबॉलिश्ड। अभी जो ये कह रहे थे कि जो गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा, अभी उसको भी काफ़ी मतलब ख़त्म कर दिया गया था। बट कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे थे जिसमें अभी भी लाइसेंसिंग की ज़रूरत थी, या फिर जिसका प्रोडक्शन सिर्फ गवर्नमेंट ही कर सकती थी, जैसे कि एल्कोहल हो गया, आपका सिगरेट्स हो गया, हैजार्डियस केमिकल्स हो गए, इंडस्ट्रियल आपके जो
इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, एरोस्पेस एंड ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। ऐसे जो सेक्टर्स हैं इनमें अभी भी या तो आपको लाइसेंस की ज़रूरत होती है, लाइसेंस का सीधा सा मतलब है कि गवर्नमेंट की परमिशन की ज़रूरत होती है, या फिर गवर्नमेंट खुद ही इनका प्रोडक्शन करती है। फोर्थ पॉइंट इज ए पार्ट ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट, एटॉमिक एनर्जी जनरेशन एंड रेलवे ट्रांसपोर्ट आर रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर। ये जो अभी आपने पढ़े हैं जैसे कि एटॉमिक एनर्जी हो गया, रेलवे हो गया और डिफेंस इक्विपमेंट हो गया, ये सभी किसके लिए रिजर्व थे? ये पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थे, अभी इसमें प्राइवेट सेक्टर नहीं आया था। इसके बाद अगला जो सेक्टर था जिसपे एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद काफ़ी ध्यान दिया गया था वो था फाइनेंशियल सेक्टर। तो फाइनेंशियल सेक्टर की एलपीजी रिफॉर्म्स के आने से पहले क्या कंडीशन रही थी उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करते हैं। तो बिफोर इंट्रोड्यूस्ड एलपीजी रिफॉर्म्स पॉलिसीज, एलपीजी एलपीजी रिफॉर्म्स पॉलिसीज आने से पहले फाइनेंशियल सेक्टर की जो सिचुएशन थी उसमें इसको एक्सप्लेन करते हुए अपना पहला पॉइंट है, फाइनेंशियल सेक्टर इंक्लूड्स फाइनेंशियल सिचुएशन इंस्टीट्यूशन such as commercial banks, investment banks, stock exchange operations and foreign exchange market। ये जो होते हैं फाइनेंशियल सेक्टर में आते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर में कौन कौन से आते हैं? जैसे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया अपना, कॉमर्शियल बैंक्स हो गए, इन्वेस्टमेंट बैंक्स हो गए, स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशंस रिलेटेड जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो हो गई, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हो गया। ये सभी किस में आते हैं? फाइनेंशियल सेक्टर में आते हैं। All banks and other financial institutions in India are regulated through norms and regulations of RBI. The RBI decided the amount of money that the bank can keep with themselves। तो आज सब कुछ भाई फाइनेंशियल रिलेटेड तो एक ही था, एपेक्स इंस्टीट्यूशन वो थी आरबीआई। आरबीआई डिसाइड करेगा कि कौन कौन इस मार्केट में रह सकता है, आरबीआई डिसाइड करेगा कि बैंक्स अपने आप पास में कितने पैसे रख सकते हैं, सब कुछ यत्र तत्र सर्वत्र आरबीआई था इस सेक्टर में। तो उसके बाद टाइम चेंज होता है और आफ्टर इंट्रोड्यूस्ड एलपीजी रिफॉर्म्स पॉलिसीज को लागू किया जाता है। उसके बाद फाइनेंशियल सेक्टर की क्या सिचुएशन होती है, क्या कायाकल्प होता है, वो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ फिफ्थ पॉइंट में आप देख रहे हैं कि सर्टेन कंडीशन। अब कौन कौन सी कंडीशन थी जिनको फुलफिल करना इन बैंक्स के लिए ज़रूरी था? तो देखिए ज़्यादा कुछ कंडीशन नहीं है, जैसे कि हो गया पॉपुलेशन डेंसिटी हो गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई आपकी, एसेसिबिलिटी मतलब कितनी जो आपके पॉपुलेशन है, जो वहाँ की कॉमन पीपल है वो कितना पहुँच पाते हैं बैंक्स तक, मार्केट पोटेंशियल हो गया, फिर कॉम्पिटिटर प्रेजेंस हो गई, आपके कोई आसपास में वहाँ पे कोई कॉम्पिटिटर है या नहीं, अगर हैं तो कितने हैं, फिर डेमोग्राफिक हो गई, किस तरीके किस जगह पे आप खोलना चाहते हो, विलेज में, रूरल में, हिली एरिया में या फिर कोस्ट लाइन एरिया में, कहाँ पे आप खोलना चाहते हो वो इसमें डेमोग्राफिक्स में आ गया। रेगुलेटरी फैक्टर्स आ गए, टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, रियल इस्टेट अवेलेबिलिटी आ गई, लोकल इकोनॉमी आ गई। ऐसे कुछ ये सर्टेन कंडीशन थी जिनको एक बैंक्स के लिए फुलफिल करना जरूरी होता था। अगर ये फुलफिल कर पाता है बैंक्स तो अपनी ब्रांचेस कहीं भी खोल सकता है। सिक्स पॉइंट इज द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स सच एज मर्चेंट बैंकर्स, म्यूचुअल फंड्स एंड पेंशन फंड्स आर नाउ अलाउड टू इन्वेस्ट इन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। तो ये हो गया अपना कंप्लीट फाइनेंशियल सेक्टर, ये कंप्लीट हो चुका है। अपने इस एलपीजी रिफॉर्म्स के आने से पहले भी इसकी कंडीशन पड़ी, एलपीजी रिफॉर्म्स आने के बाद भी इसकी कंडीशन को आपने गो थ्रू किया। नेक्स्ट पॉइंट अपना है टैक्सेशन। टैक्सेशन का क्या हाल था? तो इसमें पहला पॉइंट है टैक्स रिफॉर्म्स आर कंसर्न्ड विद द रिफॉर्म्स इन द गवर्नमेंट टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसीज which are collectively known as its fiscal policy. There are two type taxes, direct tax, indirect tax. Since 1991, there has been a continuous reduction in the taxes on individual income as it was felt that high rates of income tax were an important reason for tax evasion.
Fourth point is the rate of corporate tax, which was very high earlier, has been gradually reduced. Fifth point is in 2016, the Indian Parliament passed a law, Goods and Service Tax, commonly known as GST, Goods and Service Tax Act 2016. It simplified and introduced a unified indirect tax system in India. This law came into effect from July 2017. Sixth point is this is expected to generate additional income for the government, reduce the tax elevation, and create one nation one tax वन मार्केट. ये यूपीएससी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है. अपना नेक्स्ट पॉइंट है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में क्या क्या रिफॉर्म्स अपने को देखने को मिल रहे हैं, चलिए एक बार उसके बारे में जान लेते हैं. इसमें पहला पॉइंट है इन 1991 as an immediate measures to resolve the balance of payment crisis, the rupee was devalued against the foreign currency. फॉरेन करेंसी आप यहाँ पे डॉलर भी ले सकते हो, क्योंकि उस टाइम से लेके अभी तक जो भी फॉरेन ट्रेड होता है वो डॉलर में ही होता है. This led an increase in the inflow of foreign exchange. The market determined exchange rates based on the demand and supply of the foreign exchange. इसमें पहला पॉइंट है increase in international competitiveness and industrial production and also foreign investment and technology into the economy. The aim was also promote the efficiency to local industry and adaptation of modern technology. Third point is the tight control over imports, and by keeping the tariff very high because government want to protect domestic industry, so India was following a regime of quantitative restriction. Fourth point is the trade policy reforms aimed at first point is dismantling of quantitative restrictions, import and export, reduction of tariff rates, removed of licensing procedure for imports. Fifth point is imports licensing was abolished except in case of hazardous and environmental sensitive industries. तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. आई थिंक सीधा सीधा इसमें कुछ ज़्यादा समझाने वाला कुछ है नहीं. सीधे सीधे पॉइंट्स लिख रखे हैं, उसको रीड करना है, बार बार में रिवाइज करना है, एग्ज़ाम में आने के बाद लिख के आ जाना है.